Hello everyone and welcome back to another lecture of Unlock NEAT. क्लास लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल और बैक्टीरियल सेल, जहां हमने समझे थे इंपॉर्टेंट टर्म्स लाइक इंक्लूजन बॉडीज, क्रोमैटोफोर्स, जेनेटिक कंटेंट कैसे रहेगा प्रोकैरियोटिक सेल में. Along with that, we also understood the term villi, fimbriae and flagella. जिनोमिक और नॉन जिनोमिक डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पाइलस, क्यों इन्हें सेक्स पिलाई कहा जाता है, एंड व्हाट डज प्लाज्मिड डू फॉर अ बैक्टीरियल सेल. सो ऑल दिस डिटेलिंग वी हैव डन इन वन कंप्लीट लेक्चर. क्लास ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और जो भी इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स है हमने बहुत अच्छे से इन्हें डिस्कस किया है. सो क्लास, now after prokaryotic cell we have entered eukaryotic cell. So now we are going to start with the outermost layer of eukaryotic cell, that is the cell wall. So let's get started. Eukaryotic cell, let's start with the outermost covering, that is cell wall. Now cell wall की discovery का जो contribution था, it goes to the scientist Robert Hooke. आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था व्हेन वी डिस्कस साइंटिस्ट कंट्रीब्यूशन, कि रॉबर्ट हुक ने कॉक सेल से जो डिस्कवर किया था वो था डेड पार्ट ऑफ द प्लांट, द आउटरमोस्ट लेयर, दैट वाज सेल वॉल, राइट. उन्होंने उसके अंदर का जो प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट है उसके बारे में कोई बात नहीं की थी. व्हाट ही डिस्कवर्ड वाज द डेड पार्ट ऑफ द सेल, दैट इज सेल वॉल. सो सेल वॉल इज बेसिकली सीन इन प्लांट्स, फंजाई, majority of prokaryotes and several protists. They are going to be absent in gymnogametes and gymnozoosperms. Class, the term gymno means naked, right? And gametes are the reproductive cell. So जो reproductive cells हैं, they are devoid of cell wall. Same way, zoospores यानी कि जो asexual motile spores हैं, they are also devoid of cell wall, as they uses flagella for their locomotion. Thickness cell wall की can vary from 0.1 to 10 micrometer. Now next, talking about the composition of cell wall. Cell wall is composed of three components, that is matrix, microfibrils and deposition. Now microfibril is a jelly-like ground substance, और matrix में जो major composition रहेगा that is of water around 30 to 60%. Hemicellulose is 5 to 15% and pectin is going to be 2 to 8%. Hemicellulose and pectin, these are going to be the form of sugars, ये polysaccharides हैं. Lipid का percentile रहेगा 0.5 to 3%. and protein is going to be 1 to 2%. Next is microfibrils, and microfibrils जो हैं ये cell wall को rigidity provide करते हैं. They are going to be 20 to 40% in cell wall. Plants में जो microfibrils present रहेंगे, they are composed of cellulose. और fungi में जो microfibrils present रहेंगे, they are composed of fungal cellulose, that is chitin. क्लास, ये वाला डिस्कशन हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के डिफरेंशिएशन में भी बात किया था कि सेल्यूलोजिक मटेरियल क्या है, राइट, और काइटिन क्या है. वी हैव डिस्कस्ड द डिटेलिंग इन द लेक्चर, दैट इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. थर्ड कंपोनेंट इज डिपोजिशन. नाउ डिपोजिशन कैन बी एब्सेंट और इट कैन बी प्रेजेंट मैक्सिमम अप टू 25%. So deposition cell wall में हो सकता है lignin का, basically provides stiffness and hardness to cell wall. Lignin आपको देखने मिलते हैं sclerenchyma cells में या फिर xylem cells like vessels और tracheates. Suberin जो है ये hydrophobic in nature होता है, that means they prevent the loss of water. Generally cork cells में present होते हैं, right? Casparian strip में suberin की coating होती है, that prevents the loss of water. Now cutin is generally present in the outermost epidermal cells, right? ये आपने देखा होगा कि लीफ के surface में एक waxy coating होती है that prevents the loss of water.
राइट, ये भी हाइड्रोफोबिक इन नेचर हैं। नेक्स्ट इज सिलिका, एंड सिलिका दे आर एसोसिएटेड विद grasses, equisetum, and they silica gives protection, hardness and stiffness to cell wall, right? लास्ट इज कैल्शियम एंड आयरन, और कैल्शियम और आयरन जो हैं दे आर एसोसिएटेड विद कारा विच इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एडवांस्ड एल्गा। सो क्लास बेसिकली वी आर कंप्लीटेड विद कि सेल वॉल का कंपोजिशन क्या रहेगा अलोंग विद सेल वॉल का डिस्कवरी, प्रेजेंट, एब्सेंट एंड द थिकनेस ऑफ सेल वॉल। नाउ वील डिस्कस द डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट इन सेल वॉल। Now talking about layers in cell wall, so basically cell wall में present है middle lamella, right? The primary cell wall and the secondary cell wall. तो cell wall की तीन basic layers हैं, middle lamella, primary cell wall and secondary cell wall. So starting with the very first, that is the middle lamella. So class, middle lamella is basically the cementing layer that joins the two adjacent cells. दो एडजेसेंट सेल्स को आपस में जो ज्वाइन करने की जो लेयर है दैट लेयर इज सेड टू बी द मिडिल लैमेला, इसीलिए इसे कहा गया है सीमेंटिंग लेयर। मिडिल लैमेला के कंपोजिशन की बात करें, इट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट, लेकिन ज्यादा जो कंटेंट रहेगा वो किसका रहेगा, कैल्शियम का, राइट? इवन आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ने सिर्फ आपको कैल्शियम पेक्टेट दिया है, दे हैव नॉट मेंशन मैग्नीशियम पेक्टेट, राइट? फैक्ट इज कि दोनों प्रेजेंट है, लेकिन जो कंटेंट है वो कैल्शियम पेक्टेट का ज्यादा रहेगा। नाउ साइटोकाइनेसिस यानी कि सेल डिवीजन के टाइम पे सेल वॉल का जो पहला स्ट्रक्चर फॉर्म होता है दैट इज मिडिल लैमेला। इट इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल फॉर्म ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, राइट? ऑल्सो क्लास जब फ्रूट्स की राइपनिंग होती है, राइट, तो उस टाइम पे जो पेक्टेट मिडिल लैमेला में प्रेजेंट होता है इट अंडरगो डिसोल्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दैट इज पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज। सो क्लास आपको याद रखना है व्हाई वी कॉल मिडिल लैमेला एज अ सीमेंटिंग लेयर, क्योंकि ये दो एडजेसेंट सेल्स को ज्वाइन कर रहा है, राइट? कंपोजिशन में प्रेजेंट रहेगा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट, ज्यादा कौन रहेगा, कैल्शियम पेक्टेट। सेल वॉल में जो पहला स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो मिडिल लैमेला है एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस, और फ्रूट राइपनिंग में पेक्टेट का डिसोल्यूशन करता है एंजाइम पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज। नाउ नेक्स्ट इज प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। सो क्लास प्राइमरी सेल वॉल में जो कंटेंट है हेमीसेल्यूलोज का, लिपिड का और प्रोटीन का, इट इज हाई, while it is going to be low in case of secondary cell wall. हेमीसेल्यूलोज, लिपिड्स, प्रोटीन, ये सब अभी हमने डिस्कस किया था when we discussed the composition of cell wall, right? Next is deposition of lignin, ये यहाँ पे absent रहेगा primary cell wall में, while secondary cell wall में deposition of lignin is present. Just now I told you कि lignin ये क्या करता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है, स्टिफनेस प्रोवाइड करता है सेल वॉल को। पेक्टिन दैट इज अ फॉर्म ऑफ पॉलीसेकेराइड, शुगर का कंटेंट है, ये प्राइमरी सेल वॉल में हाई है व्हाइल इट इज गोइंग टू बी लो इन केस ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल। हाइड्रेशन कैपेसिटी यानी कि जो कैपेसिटी है सेल वॉल की टू होल्ड वाटर इज गोइंग टू बी 60%, यानी कि ज्यादा है as compared to secondary cell wall that is only 30 to 40%. Now primary cell wall is found in young growing cells while secondary cell wall उन cells में देखने को मिलती है which have stopped growing. Primary cell wall में आपको सब layers का distinguishment नहीं दिखेगा while secondary cell wall में you could see the distinguishment of sub layers. Here you can see the class. यहाँ पे आपको नजर आ रहा है द लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स, यहाँ पे दिखाया है। सेंटर में आपको दिखाया है मिडिल लैमेला दैट इज गोइंग टू एक्ट एज द सीमेंटिंग लेयर बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स, सेल 1 एंड सेल 2.
देन कम्स द प्राइमरी सेल वॉल, जिसमें कोई आपको सब लेयर्स का डिस्टिंग्विशमेंट नहीं दिखेगा. देन कम्स S1, S2, S3 एंड दीज आर द सब लेयर्स ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल. तो यहाँ पे आपको ट्रांसवर्स सेक्शन दिखा दिया, द मिडल लैमेला, द प्राइमरी सेल वॉल एंड द सेकेंडरी सेल वॉल. दिस इज द स्पेस, ये ल्यूमेन रहेगा जहाँ पे हमारे सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट रहेंगे. द स्पेस इज फॉर द ऑर्गेनेलीज. So class, this distinguishment between the primary cell wall and secondary cell wall again is important from your exam point of view. आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल किन सेल्स में होती है, हाइड्रेशन कैपेसिटी क्या है दोनों की, राइट. दोनों में पेक्टिन, हेमीसेल्यूलोज, लिपिड, प्रोटीन का कंटेंट क्या रहेगा, राइट. Along with that, you should also know that the distinguishment of sublayers could be seen only in secondary cell wall. Now class, talking about the growth of primary cell wall and growth in secondary cell wall. Primary wall में class जो नए मटेरियल्स हैं, राइट, नए मटेरियल्स यानी कि सेल्यूलोज है, पेक्टिन है, हेमीसेल्यूलोज है, इनका जो एडिशन होगा दैट इज गोइंग टू बी विद इन और इनसाइड द प्री एग्जिस्टिंग वॉल. यानी कि जो ऑलरेडी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसी में नए मटेरियल ऐड होते जाएंगे, राइट. दिस इज हाउ प्राइमरी सेल वॉल ग्रोज एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज इंटूससेप्शन. While in case of secondary cell wall, जो नए मटेरियल हैं यानी कि सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड लिग्निन, यहाँ पे लिग्निन नहीं लिखा है क्योंकि लिग्निन का डिपोजिशन प्राइमरी में एब्सेंट होगा, राइट. तो यहाँ पे जो नए मटेरियल्स हैं सेकेंडरी सेल वॉल में, दे आर गोइंग टू बी एडेड ओवर द प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स, इसीलिए हमें सब लेयर्स नजर आती है, राइट. एंड दैट फॉर्म ऑफ ग्रोथ इज सेड टू बी एक्रीशन. दैट फॉर्म ऑफ ग्रोथ को हम बोलेंगे एक्रीशन. तो प्राइमरी सेल वॉल में द ग्रोथ इज इंटूससेप्शन, वाइल सेकेंडरी सेल वॉल में जो ग्रोथ है दैट इज एक्रीशन. प्राइमरी सेल वॉल में नए मटेरियल प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में ही ऐड होंगे, जबकि सेकेंडरी सेल वॉल में नया मटेरियल जो है इट विल कीप एडिंग ओवर द प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स इन द फॉर्म ऑफ layers and that form is accretion. So class, you have understood what does intussusception mean and what does the term accretion means. Now class, next structures that are present in cell wall, that is plasmodesmata. यहाँ पे क्लास आपको नजर आ रहा है कि सेल में जो सेल वॉल है इसमें माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट है, राइट. And these pores, they are connecting the cytoplasm of one cell with the cytoplasm of another cell, right. यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो pores हैं इनके थ्रू दो सेल्स के साइटोप्लाज्म, टू adjacent सेल्स के साइटोप्लाज्म कनेक्टेड हैं. दैट इज वाई प्लाज्मोडेस्मेटा को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस दैट इज प्रेजेंट बिटवीन टू adjacent cells, right. The diameter of plasmodesmata can vary from 40 to 50 nanometer and they are basically involved in the transport or exchange of chemical compounds from one cell to another cell. So एक सेल से दूसरे सेल में जो चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, that is through these pores which are known as plasmodesma or plasmodesmata. Now class, plasmodesmata जो structures हैं ये केवल plants में present हैं, they are not going to be seen in animal cells. और साथ ही plants में जो continuity होती है substances की, materials की, वो किसके थ्रू हो रही है? Plasmodesmata from one cell to another cell. So class, in today's lecture we discussed eukaryotic cell and we started with cell wall. हमने डिस्कस किया कि सेल वॉल का कंपोजिशन क्या रहेगा. अलोंग विद दैट वी आल्सो डिस्कस्ड प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल में ग्रोथ कैसे होती है. वी डिस्कस्ड इंपॉर्टेंट टर्म्स लाइक इंटूससेप्शन, एक्रीशन, राइट. साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस प्लाज्मोडेस्मेटा को क्यों कहा जाता है, राइट. विच लेयर इज सेड टू बी द सीमेंटिंग लेयर और इनका कंपोजिशन क्या है.
So all this we have discussed in today's lecture. So class, in our next lecture, we'll be discussing about another layer, that is cell membrane. और हम डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन को क्यों हम ट्रू मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन के लिए बहुत सारे मॉडल्स डिस्कस किए गए, किस मॉडल को सबसे एक्सेप्टेड किया गया और किस मॉडल को रिजेक्ट किया गया. So all this we are going to discuss in our next lecture. So stay connected and stay tuned. Thank you.